अच्छा, इसको जरा साइड पे करें। अच्छा, दिस वन कि लास्ट टाइम ना वी ये बात नहीं है अभी तक। अच्छा, लास्ट टाइम वी स्टडीड दिस के वी डिड क्रिस्टलाइजेशन, वी डूइंग सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। सो वी डिड कि हमने वी हैड डन फिल्ट्रेशन, डिकैंटिंग राइट साइड पे। अच्छा, वी डन ऑल दीज सेपरेशन टेक्निक्स। तो फिल्ट्रेशन हो गया था, डिकैंटिंग, वी वर डन विद क्रिस्टलाइजेशन। फिर ये सॉल्ट प्लस वाटर को ना वी वर ट्राइंग टू सेपरेट, ठीक है, सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्वेंट, ठीक है। जस्ट वन सेकंड, लेट मी ऐड somebody. अच्छा, so we were trying to separate salt plus water, and there were three other methods: evaporation, simple distillation, and reverse osmosis. So we're going to discuss all three of them. So did decanting, we did crystallization, ठीक है, वो डिटेल में किया था। And now the next one is evaporation to dryness, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत पॉइंट है। कितने लोग ऐड हो रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है, गाड़ियाँ से। अच्छा, so moving on from where we left off last time, salt plus water. How do you separate evaporation to dryness? And that is कि you completely heat something. ठीक है, so when you completely heat something and evaporate, so I've got salt and water, and I've उसका एक छोटा सा diagram draw कर लेते हैं. Let's say I have a beaker, and that beaker has water in it, salt and water in it, right? So it's got, so ये बड़ा obvious है, it's got salt plus water, or you can say NaCl aqueous, and you're trying to heat it. ठीक है, so you're heating it probably using a Bunsen burner. Now all the water would evaporate. So the water would evaporate, leaving the salt behind. That's it. ठीक है, so water evaporates, and it leaves salt behind. अच्छा, लेकिन the problem, so the salt is going to be left behind. The problem with this method is कि firstly, you're not going to get crystals. क्योंकि जो method है ना, it's very very quick. So it doesn't, वो हमने last time when we discussed crystallization, I told you कि when you have a salt, ठीक है, the salt particles, जो उसके ions वगैरह particles वगैरह होते हैं, they dissociate in water. When you mix them, they get scattered, and when you get rid of some of the water, ठीक है, some of the water in the middle, if you remove it, the particles get back together and they start forming the crystal back again. But it's a slow and gradual process. ठीक है, it takes time. It takes probably 1 day to form crystals. Because this particle has to reach this particle and they'll connect, and this one, so the crystallization process takes time. So when you quickly try and evaporate all the water, so you don't have enough time. तो होता ही है कि it doesn't form, you don't form crystals, right? And the salt that's going to be produced is not going to be pure, will not be pure. ठीक है, and the reason for that was I told you that crystallization is it forms very pure crystals. क्योंकि when crystallization happens, तो जो particles which are getting together, the impurities, whatever impurities are present, they're left behind. ठीक है, when they form a crystal, when this joins with this and all of them get together, the crystal is always very very, it's very very pure. So when you evaporate very quickly, तो वो जो impurities वगैरह, crystallization is not happening, the impurities kind of stay over there. ठीक है, ये वाला part clear? Is this clear? Evaporation to dryness, it does give you salt, but it's not going to be very pure, and it won't form crystals. ये clear है? ज़मारे बाद मीरा
गानी is Yes, sir. clear? This is clear, sir. एक second. So उसका अगला वाला ठीक है. We'll move to the next one, which is simple distillation. ठीक है. अच्छा, Done, sir. next one is हो गया. अच्छा, next one is simple distillation. अच्छा, now there was one difference between again it's salt and water. ठीक है. It's a soluble solid or a solute in a solvent. अच्छा, simple distillation में कि you're not actually after the salt. Now you're trying to get the water, right? तो अब उल्टा हो गया. Crystallization में you were actually extracting the salt. Evaporation, dryness, you were extracting the salt. Simple distillation, you're actually extracting the water, not the salt. ठीक है. So this one is you try to extract water from salt plus water. ठीक है. That's your mixture. उसका diagram सबसे पहले simple distillation, or remember there's a fractional distillation that's going to come later on. There's one minor difference कि simple distillation वाला जो part है, one second, let me add somebody. अच्छा, so simple distillation is कि you just have a round bottom flask. तो एक सेकंड जल्दी से बना लेते हैं. थोड़ा सा इसको सही करना. अच्छा, फ्लास्क का वैसे नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन you just call it a round bottom flask. iGCSE we keep things simple a little bit. ठीक है. तो यहाँ से बस दो ट्यूब्स होंगी and there's going to be a condenser. क्यों नहीं सही हुआ? एक सेकंड. ठीक है. और फिर एक कंडेंसर which is going to be on top of it. तो ये थोड़ा सही बन जाए. So I guess that would do. अच्छा, again this diagram is very important because they're going to ask you to draw it and label it as well. ठीक है. तो that's it. और top पे ना there's going to be so that's your rubber bung. I'm going to label it. I'm going to start labeling it. The other part, that's the rubber bung or stopper. So this is inside this. This is your salted water. You're going to heat it at the bottom, probably with a Bunsen burner. ठीक है. This is your Liebig condenser. You can simply write that that's your condenser. Condenser का purpose क्या है? It provides a cold environment. ठीक है. So it's normally filled with water. उसके साथ pipes attached होते हैं. And it's filled with water. तो water in इस side से होता है cold water in. ठीक है. Make sure you write cold water in. And this is your cold water out.
और anyways, the concept is pretty simple कि water evaporates. ठीक है, the salt remains behind. The salt has a very high boiling point, water has a very low boiling point, so all the water would evaporate and it will eventually reach the cold condenser where they would lose energy and they will condense and they'll form the liquid back again. ठीक है, so the condenser provides a cold environment. but अगर वो पूछेगा ना condenser का purpose क्या है, so it provides a cold environment where what happens, where water molecules, water vapors, yeah, energetic water vapors, they lose energy and condense back into liquid. ठीक है, so that's what's happening inside the condenser. On the other side, you're going to put a, normally you just put a beaker over there. EQL. अच्छा, normally you just put a beaker over there जहाँ पे all the liquid particles would eventually, when they condense, they fall into the beaker. That's it. अच्छा, now the thing is कि you इस पे और तो ज्यादा नहीं पूछते. You're just heating it, you're evaporating the water, and that's how pure liquid water gets uh, very pure. Remember, this is a very, very, very good method of separation. ठीक है, so it's very pure water is collected without any salt. ठीक है, and this is known as distilled water, या फिर it's also known as deionized water. So this one, as it's known as distilled water or deionized water. What is collected over here, उसका जो technical नाम है ना, that's known as a distillate. ठीक है, so that's your distillate that is obtained over here. और salt आपकी ना पीछे रह जाती है. ठीक है, that remains behind. So that all is basically simple distillation, and the diagram has इसको कर लो, इसको label कर लो. Okay, that's your round bottom flask. ठीक है, ज्यादा solution को जब भी heat करना पड़ता है ना, तो that's a round bottom flask which is attached to ATP के अंदर ना ज्यादा labeling भी आ सकती है. So I'm going to add a few things. It's उसके साथ ना एक stand होता है, and this thing is clamps के साथ ना it's connected to this stand. और इस stand का नाम पता है किसी को? Any idea? Zarar, Ibad, Ghania, any idea what's the name of the stand? Girib? अब हेलो, आवाज आ रही है किसी को? हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है. अच्छा, तो ठीक है, नो कह दिया करो ताकि पता लगे कि सुन भी रहा है आगे किसी. अच्छा, so this one is called a retort stand. ये भी ATP के अंदर ना खास तौर पे they'll ask you to label this. ठीक है, that's known as a retort. Iron clamp. हम्म, Iron clamp. हाँ, ये वाले जो क्लैम्प्स है ना, उनको तो ऑब्वियसली आप आयरन क्लैम्प कहते हो. सिंपली क्लैम्प्स आयरन का जरूरी नहीं, आयरन का बनाओ. अब तो बहुत मटेरियल है, अब तो वो PVC वगैरह के भी बने होते हैं. मैंने फिर आयरन लिख दिया. अच्छा, लेकिन लेकिन ये ना नॉर्मली ये पूछते हैं वो कि इस पूरा स्टैंड इसका क्या नाम है.
उसका नाम जो है दैट्स अ रीटॉर्ट स्टैंड, ठीक है। अच्छा, सो एनीवे सिंपल डिस्टिलेशन के वाटर को इवेपोरेट करते हैं एंड द वाटर, ठीक है, वो इधर से बॉईल करता है, वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। इवेपोरेट होके वो फिर इस पाइप के थ्रू ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करने के बाद इट लूजेस एनर्जी, पार्टिकल्स लूज एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे वो जो कोल्ड वाटर ना उसकी वजह से देयर इज अ कोल्ड एनवायरनमेंट एंड द लिक्विड वाटर स्टार्ट्स फॉलिंग इनसाइड इट, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि मेक श्योर कि जब डायग्राम ड्रॉ करो ना तो यहाँ पे कोई गैप्स वगैरह ना हो, ठीक है, कोई ओपनिंग ना हो, वरना तो वाटर उधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो इट शुड बी एयर टाइट, राइट। तो मेक श्योर कि apparatus drawn is airtight. फिर कंडेंसर में जाते हैं, द लूज एनर्जी, उसके बाद क्या होता है? बस वो कंडेंस हो जाते हैं ना, वाटर वेपर्स लूज एनर्जी एंड कंडेंस बैक इनटू लिक्विड, ठीक है, राइट साइड पे। अच्छा, बाकी एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि यहाँ पे एयर टाइट तो रखा हुआ है, इधर क्यों ओपन रखा हुआ है इस जगह पे? कोई बता सकता है व्हाई इज इट केप्ट ओपन ओवर हियर? मतलब स्टीम है ना, स्टीम जब बनी है तो वो इधर से जाएगी, तो हो सकता है सारी कंडेंसा करे वो बाहर भी निकल सकती है ना, तो मुझे बताओ कि तो वो तो जाया हो जाएगी ना, तो व्हाई इज इट नॉट केप्ट एयर टाइट एट दैट पॉइंट? ताकि प्रेशर ज्यादा ना हो जाए। हाँ, क्योंकि होता है कि स्टीम जो है ना इट एक्सपैंड्स, तो इफ तो अगर तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया तो स्टीम वुड एक्सपैंड, तो द होल थिंग वुड, उसको कोई जगह चाहिए जहाँ से वो बाहर निकल जाए, ठीक है, तो द होल थिंग वुड एक्सप्लोड। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि तो दिस इज केप्ट ओपन, सो एनी एक्सेस steam escapes and pressure does not build, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि तो ये हो गया, ये हमारा खत्म हो गया सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, और सिंपल डिस्टिलेशन की एक और चीज मैं देख लूँ कि दिस इज यूज प्रैक्टिकली कहाँ पे, वेयर इज इट यूज? इट्स यूज्ड इन लार्ज डीसैलिनेशन प्लांट्स, ठीक है, लार्ज डीसैलिनेशन, जो वाटर सप्लाई होती है ना, खासतौर पे जहाँ पे देयर इज नो फ्रेश वाटर, ठीक है, स्पेशली इन सिटीज दैट लाई अलोंग द कोस्ट, जहाँ पे सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है। सो लार्ज डीसैलिनेशन प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, they remove salt from water या from sea water in this way, ठीक है। तो दैट ऑल इज सिंपल डिस्टिलेशन। अब वापस उस पर चले जाएं कि हमारा ना वो इवेपोरेशन भी हो गया, सिंपल डिस्टिलेशन भी हो गया, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर, लास्ट वन दैट्स लेफ्ट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिक से मैंने कहा था, रिवर्स ऑस्मोसिस isn't really part of your course directly, ठीक है। हमेशा ना थोड़ा सा हम एक्सेस पढ़ते हैं, ताकि क्योंकि वो भी ना कभी कभार सिलेबस से ना थोड़ा जनरल नॉलेज का भी ना टेस्ट ले लेते हैं, तो मतलब वो कोई बहुत आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाते, लेकिन थोड़ा बहुत ना वो भी साइड पे निकल जाते हैं, ठीक है, जस्ट वेरी स्लाइटली, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेसिकली कॉमन सेंस ही यूज करनी होती है। तो द लास्ट वन वी गोना डू इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस है कि अच्छा, वो सिंपल सा है, अगर बायोलॉजी में ऑस्मोसिस पढ़ा ना या अगर नहीं भी पढ़ा, डजंट रियली मैटर, ठीक है। बेसिकली सॉल्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर
by membranes which are very fine. ठीक है, कभी कभार the very fine filters जो अच्छा देखिए ये expensive काम filters जो है ना these are so these are not really filters, these are semi-permeable membranes which are capable, salt के जो particles होते हैं when it's dissolved they're very very tiny, so they're semi-permeable membranes which can stop or trap salt. तो फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर के ऊपर और उसको ना हाई प्रेशर के ऊपर गुजारना पड़ता है, सो इफ देयर इज वाटर दैट हैज अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट, तो दूसरी साइड पे जो वाटर होगा ना दैट विल नॉट रियली, उसमें थोड़ी बहुत होगी, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स इतने टाइनी होते हैं कि नॉट ऑल ऑफ देम गेट स्टॉप्ड, तो सॉल्ट विद लॉट ऑफ मतलब वाटर विद अ लॉट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सो दिस इज तो दैट्स अ रिवर्स ऑस्मोसिस, बस ये है, ठीक है, और ये हाई प्रेशर के ऊपर ना ये सिटीज वगैरह ना प्योरीफाई करते हैं वाटर, दे ट्राई टू रिमूव सॉल्ट इन दिस वे एज वेल, ठीक है, तो दिस दिस अदर मेथड व्हिच इज रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर इसको रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कहा है? क्योंकि ऑस्मोसिस मीन्स उल्टा होता है ना, ऑस्मोसिस में क्या होता है पानी किधर से किधर वाटर ट्रैवल करता है, मतलब ऑस्मोसिस में पानी जो होगा वो किधर ट्रैवल करेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, वाटर मूव करेगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। हाँ ऑस्मोसिस में क्या होता है वो जो प्लांट्स पे होती है, सो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से इट मूव्स टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो यानी कि पानी इस वाटर डायरेक्शन, जहाँ कम होगा वहां मूव करेगा। हाँ वाटर इस तरह मूव करता है ना, जब वो प्लांट्स वगैरह में मूव करता है ना वो ऑस्मोसिस होता है ना, ठीक है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस है कि पानी ने तो इस डायरेक्शन में मूव करना था लेकिन आप हाई प्रेशर यूज कर रहे हो ना, तो आप उसको फोर्स कर रहे हो उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक ठीक है, है। अच्छा फिर ये कि एक सेकंड में ऐड कर दूं, अच्छा नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये खत्म हो गया, बस सॉल्ट और वाटर वाली सारी कहानी ना वो तो खत्म हो गई है, ठीक है, सर तो थोड़ा हमने सा वो साल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बता दें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नहीं नहीं उसी पे अब अगला वही है ना, सही। तो अगला वाला जो है वो नंबर 3 जो है दैट्स two or more miscible liquids, ethanol plus water or fractional distillation, ठीक है, that's the method, ठीक है, तो ये नेक्स्ट है which is fractional distillation, और इसकी कहानी ना क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इट्स आल्सो लिंक्ड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो वी गोना स्टडी, अच्छा केमिस्ट्री का ना एक जो हमेशा से इशू है ना केमिस्ट्री का जो मसला है वो ये कि केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर भी है ना वो भी आखिरी चैप्टर के साथ भी लिंक्ड है, ठीक है, तो केमिस्ट्री के ना ऑल चैप्टर्स आर काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड, केमिस्ट्री ओनली मेक सेंस व्हेन यू स्टडी ऑल ऑफ इट, ठीक है, तो इसके ऑल द चैप्टर्स आर काइंड ऑफ मिक्स्ड अप विद ईच अदर, तो इसके अंदर हम लास्ट चैप्टर वाली भी ना चीज पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अच्छा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज व्हेन यू हैव two or more miscible liquids, miscible का मतलब है mixed together, ठीक है, that are soluble in each other, तो इधर हम फिर से वो ऐड कर देते हैं, miscible means कि they are soluble in each other, और उसकी प्राइम एग्जांपल है you've got ethanol plus water, you've got vinegar plus water,
the orange juice आप पीते हो, citric acid plus water, right? और petroleum सबसे important है, that's petroleum. जो you dig for oil and all the different petroleum products are all mixed together. So how is separation done? Separation happens because of differences in boiling points. So due to differences, ये याद रखना, is going to ask you why does separation happens, because they've got different boiling points. ठीक है, तो डायग्राम तो हमने ऑलमोस्ट वही डायग्राम कॉपी करना है. इसको थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड में इसको तो यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं. अच्छा, so this is your diagram. अब इसमें ना एक फर्क ये होगा कि इस चीज को उठा के अलग करें. अच्छा, एक डिफरेंस जो है वो है कि there is going to be an extra fractionating column इन सब को भी. अच्छा, there is going to be डायग्राम में थोड़ा टाइम लगेगा, एक सेकंड है ना. अच्छा, so there's going to be an extra fractionating column which is going to be attached on top of it. तो fractionating column कैसी होगी? It's अच्छा, चलें इसी तरह की होगी, वो हम इसके ऊपर और यहाँ पे चलें, ये हो गया. उसके टॉप पे एक चलिए ठीक है, that's kind of it. और इस चीज को उठा के इधर अटैच कर दिया. तो बीच में एक्स्ट्रा चीज आई है, you've got a fractioning column in the middle. थोड़ा सा एक सेकंड, ये मैं सेट कर लूं. चलिए ठीक है, that's good enough. अच्छा, इसमें the only difference is कि यहाँ पे ना there's going to be a lot of glass beads. Actually, it could be anything that increases the surface here. This thing over here is called a, इसको कहते हैं, it's called a fractioning column. ठीक है, so अच्छा so let's say these are glass beads. ऐसा किसी को पता है फ्रैक्शनिंग कॉलम का पर्पस क्या होता है? यहाँ पे बॉटम पे एनीवन, ये बात क्या पर्पस होता है फ्रैक्शनिंग कॉलम का? ज़रार क्या मिक्स नहीं हो जाता ना दोनों वो इनको? सर वो एक कोई कंडेंस होके वापस नीचे यहाँ आ जाता है.
अच्छा ठीक है, वो बेसिकली ना, ठीक है मैं बता देता हूँ, लेकिन वो तो लिखोगे क्या पेपर में, क्या लिखोगे? ठीक है, रिमेम्बर मेन मसला है कि वो पता तो होता है लेकिन वो पेपर में एग्जैक्टली व्हाट यू गोइंग टू राइट, ठीक है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट यू गोइंग टू यूज, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द फ्रैक्शनिंग कॉलम है कि जब आप किसी चीज को ना बॉईल करते हो, ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे ना मैं इसका वो ग्राफ बना देता हूँ कि हाउ वुड, एक तो इसको पीछे करा जरा एक सेकेंड। अच्छा, तो हाउ वुड द ग्राफ लुक लाइक, हाउ वुड द, अगर 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 मैं नीचे से हीट करूँ ना इसे, तो इसका जो हीटिंग वाला सारा, एक सेकेंड, इसको 14 पे, हाँ, अच्छा इसको हीट करें तो हाउ वुड द ग्राफ लुक लाइक? सो द ग्राफ वुड बी के सबसे पहले कौन बॉईल करेगा? एथेनॉल बॉईल करेगा, ठीक है। सो द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस कि आपके पास ना इसका टेम्परेचर राइज करा होगा, और फिर जाके ना एक पॉइंट पे जाके ना 78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली एट 78 इट्स गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। व्हाई? बिकॉज द एथेनॉल वुड स्टार्ट बॉइलिंग, और फिर एथेनॉल बॉईल करता रहेगा। And once all the ethanol has boiled, then the temperature would start to rise again, and then it will stop at, then it will stop at 100, ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर बॉईल करना शुरू कर देगा। पहले एथेनॉल वुड बॉईल and all of it will evaporate and turn to gas, and then water would boil, and then water would start boiling, and once water has boiled, then the temperature, remember change of state when our temperature remains constant. So this is how the graph would look like. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एथेनॉल बॉइल्स, यानी चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू, और यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर, बॉल। ठीक है, तो वो फिर चेंज हो जाता है लिक्विड टू गैस। तो ये तो पहले ही डिसाइडेड है कि जो पहली चीज बॉईल करेगी ना, दैट्स गोइंग टू बी आपका एथेनॉल, राइट। तो एथेनॉल के पार्टिकल्स जो है ना वो ट्रैवल करेंगे ऊपर, फिर दिल रीच द ग्लास बीड्स। तो ग्लास बीड्स के अंदर भी ना, क्योंकि उनका तो बॉइलिंग पॉइंट है ना, दे गोना रिमेन इन गैसियस स्टेट, तो वो बीच में से ना किसी तरह मूव करते रहेंगे इनके थ्रू। थोड़ा इनको डिलीट ही कर देते हैं, एक सेकेंड। सारे डिलीट हो गए। अच्छा, वो इनके थ्रू ना they'll be able to pass and squeeze through the gaps that are between the glass beads, and they're going to reach the top, ठीक है। अच्छा, उधर टॉप पे ना एक चीज हम बड़ी इंपॉर्टेंट मिस कर गए, which is a thermometer, ठीक है। thermometer is placed right at the opening of the condenser, और फिर condensers है ना, these ethanol particles would travel and they'll reach the condenser में वही होगा, वो cold environment होगी, then they're going to condense back again, ठीक है। तो यहाँ पे there's going to be a beaker, ठीक है, and उस beaker में you'll get ethanol first, ठीक है। इसको बाकी भी फिल कर लेना, this is cold water in and cold water, ठीक है। ये भी ख्याल रखना है, cold water in is going to go from the bottom side, ठीक है। अच्छा, so anyways एथेनॉल आपको मिल गया, ठीक है। तो अब मुझे मसला क्या है, ये जो एथेनॉल है, ये इस एथेनॉल के साथ मतलब उसका उसका फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फ्रैक्शनिंग कॉलम? हीट क्योंकि नीचे तब भी हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे होंगे जब वो लाइक बॉयल वाटर वेपर्स के फॉर्म में लाइक हो गया होगा, तो शायद तब तक वो
हीट तब वाटर भी इवेपोरेट करना शुरू कर देगा, तो वाटर भी मिक्स नहीं होने देते, राइट? हाँ ठीक है। अच्छा, तो मेन मेन इशू इज कि व्हेन एथेनॉल बॉइल्स एट 78, ठीक है, उसके ऊपर रिमेंबर इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। वो जो टॉप सरफेस होती है इवेपोरेशन क्या होती है कि टॉप सरफेस के ऊपर ना द पार्टिकल्स इवन इफ इट्स नॉट द बॉइलिंग पॉइंट सम वाटर वुड स्टिल इवेपोरेट। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जब एथेनॉल बॉईल करा होगा तो बीच में ना थोड़े बहुत वाटर जो टॉप सरफेस है ना वो भी बीच में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। एंड दे विल, अब उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, सो दे विल आल्सो रीच द फ्रैशनिंग कॉलम। बट व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि क्योंकि इट्स नॉट देयर बॉइलिंग पॉइंट, they would end up bumping with the glass beads and they would end up losing energy and they will all fall back, वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो so that improves or increases the purity of the ethanol that you get, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत ना water would still be evaporating over here. So to prevent those water from reaching the other side, ठीक है, you want to prevent that from happening, तो वो the glass beads make sure कि there's enough surface area कि ये जो पार्टिकल्स जो बीच में वैसे ही फालतू के शामिल हो गए ना, दे एंड अप लूजिंग एनर्जी एंड दे कंडेंस बैक एंड फॉल बैक इनटू द वाटर। अब इसको उसमें किस तरह लिखोगे, उसने पूछा ना क्वेश्चन में कि हाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्रैशनिंग कॉलम, राइट? तो व्हाट डज इट डू? इट इंक्रीजेस, मतलब वर्डिंग इंपॉर्टेंट, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड प्रिवेंट्स, ज्यादातर बच्चों को ना वो पता होती है चीजें सारी लेकिन लिखना नहीं आता, ठीक है। एंड प्रिवेंट्स द हायर बॉइलिंग पॉइंट वेपर फ्रॉम reaching the condenser। ठीक है, ये पर्पस है इसका फ्रैशनिंग कॉलम का। ये पर्पस क्लियर है? यस सर। ठीक है, सारों को क्लियर ना? Yes, sir. अच्छा, बाकी वो थर्मीटर भी पूछ रहा था, थर्मीटर को तो क्यों रखा हुआ है, ठीक है। तो थर्मीटर की पोजीशन के बारे में पूछ रहा था, सो व्हाई इज द थर्मीटर प्लेस्ड राइट एट द ओपनिंग, ठीक है। सो तो वो इसलिए कि at the opening of the condenser, ठीक है, it tells you exactly which substance is condensing and being collected as the distillate। तो at the exactly which and collects तो अगर आपका जो ग्राफ है ना, थर्मीटर आपको बता रहा है कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको पता है एथेनॉल कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर if your thermometer is telling you the temperature is 100 degrees centigrade, so you would know कि it's water that's actually condensing, ठीक है। तो this is fractional distillation और ये fractioning column, ठीक है, that's important। बाकी लेबलिंग तो वही है, ठीक है, you've got a condenser, बाकी लेबलिंग वैसे कर लेते हैं। ये this over here, अच्छा this over here is the condenser और वो तो खैर डिस्टिलेट ही है और बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है सारा? यस सर। मीरा बगानिया, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ना, अच्छा ना, तो ठीक है। बाकी ये कि आप आ जाते हैं एक और ना जो लास्ट चैप्टर वाली चीज है, ओ, और वो आखिरी चीज है कि
आपने यहाँ पे what you're going to do is you're going to replace the collection apparatus, ठीक है? एथेनॉल जब कलेक्ट हो गया ना 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज, उसका मतलब है एथेनॉल का टाइम खत्म हो गया. यू कैन जस्ट रिप्लेस द एथेनॉल एंड उसको बीकर खाली कर लो या चेंज द बीकर एंड कलेक्ट द अदर सब्सटेंस. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा इससे क्योंकि हमने apparatus बनाया हुआ ना, बल्कि छोड़ो वो चीज़ हम बाद में करेंगे जब वो टाइम आएगा. अच्छा, we're gonna start with, टाइम भी खत्म हो गया, अब ये नेक्स्ट क्लास के लिए मैं लिख रहा हूँ, एंड दैट्स द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल. और सिलेबस जो है ना, इट यूजेस द वर्ड पेट्रोलियम. तो ये उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ठीक है, व्हिच वील कवर टुमारो. ठीक है, सर ये चलिए इस सर. क्लास की कुछ नोट भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये मैं फिर वो भेज रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग अल्लाह हाफिज शाम सर। तक. ठीक है, चलिए, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? कल फिर कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम. ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़. Love.